Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shahid Raza, Assistant Professor, University of Education, Lahore. Welcome to join this lecture. My dear students, as you know, we are discussing about the course Introduction to Guidance and Counseling. And you know this course is of B.Ed Honors and the course code is EDUC 3142. You know, we have discussed different topics related to guidance and counseling in our previous lectures. And now in this series, we are discussing about guidance services. So we have already discussed orientation service of guidance as well as the placement service of guidance. So today we are going to discuss another important service of guidance, and that is follow-up service. So we will discuss in detail about what is follow-up service and how it can be provided. So let's discuss about its importance. So you know, sometimes a job or an occupation may not give full satisfaction to the individual, and he may need assistance in entering new jobs. You know, sometimes a person who starts his job or an occupation, he may feel dissatisfaction. कोई भी शख्स जो किसी जॉब को स्टार्ट करता है, कोई ऑक्यूपेशन स्टार्ट करता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मुतमईन हो, वो सेटिस्फैक्शन फील करे, वो सेटिस्फाई हो वहाँ, तो वो डिससेटिस्फैक्शन भी फील कर सकता है। वो मुतमईन हो भी सकता है और मुतमईन नहीं भी हो सकता। So there are so many circumstances and the environment in which he is doing his job. So those circumstances may affect, and that particular environment also may affect related to satisfaction and dissatisfaction of that individual. तो अगर वो मुतमईन है तो फिर तो ठीक है, और अगर वो मुतमईन नहीं है, he feels some sort of dissatisfaction related to his job or occupation, then there is need to provide him assistance in entering new job. तो फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि आप उसे असिस्टेंस प्रोवाइड करें, उसकी हेल्प करें, उसको रहनुमाई प्रोवाइड करें, उसको गाइड करें प्रॉपरली, उसकी काउंसलिंग की जाए और उसको बताया जाए कि डिफरेंट और न्यू जॉब्स कौन सी हैं जो मोस्ट सूटेबल हो सकती हैं उसके लिए। तो इस हवाले से एक्चुअली यू आर प्रोवाइडिंग फीडबैक. So actually you are helping that individual who has some sort of problems and he feels dissatisfaction related to his job and in that particular environment. So at times an individual may need some additional information. तो कोई भी फ़र्द, कोई भी इंडिविजुअल, उसको किसी भी वक्त एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ सकती है. He needs to find out the person who may help him and to provide him additional information which may be helpful for him. So it may so happen that the individual after entering into a job finds it difficult to make normal progress in achieving his objectives. तो ये भी बाज़ औक़ात देखा जाता है कि एक फ़र्द ने, एक इंडिविजुअल ने जॉब स्टार्ट कर दी है और वो वहाँ पे काम कर रहा है, बट ही इज़ फीलिंग some sort of difficulties related to that job. वो उस environment के हवाले से, उस job के हवाले से, उस profession, occupation के हवाले से कुछ difficulties feel कर रहे हैं, कुछ मुश्किलात उसे आ रही हैं और उसकी जो normal progress है वो ठीक तरह से नहीं हो रही. There are problems related to his normal progress in that particular field. वो अपने objectives को achieve नहीं कर पा रहा. So he feels dissatisfied. तो उसकी इस डिससेटिस्फैक्शन के पीछे रीज़न्स क्या हैं, वो वजूहात क्या हैं, तो एक गाइडेंस पर्सनल को वो रीज़न्स फाइंड आउट करनी है, उन वजूहात का पता चलाना है ताकि वो प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सके उसके प्रॉब्लमेटिक कंसर्न्स के हवाले से. इन ऑल सच केसेस सम एक्सपर्ट गाइडेंस इज नीडेड. तो इस तमाम सिचुएशन में
जहाँ एक इंडिविजुअल डिफ़िकल्टी फील कर रहा है, प्रॉब्लमेटिक कंसर्न्स है उसका, वो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पा रहा, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, एंड देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि उसे एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। ही नीड्स सम सॉर्ट ऑफ एक्सपर्ट गाइडेंस रिलेटेड टू हिज प्रॉब्लम्स, एंड सच गाइडेंस सर्विसेज में बी टर्म्ड एज फॉलो अप सर्विसेज। और ये जितनी भी आप हेल्प करने जा रहे हैं उस इंडिविजुअल की, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए, वो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो, तो ये तमाम हेल्प और तमाम सर्विसेज फॉलो अप सर्विसेज कहलाती हैं। So now we are discussing specially related to teaching learning environment. In school situation or in college or university, any educational institution, वहाँ भी ज़रूरत पड़ती है एक स्टूडेंट की हेल्प करने के हवाले से, उसको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करने के हवाले से, उसको फॉलो अप सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। Even in educational situations, when one is admitted into a new course, he needs some guidance to adjust to the requirements. ये डिस्कस किया जा रहा है कि जब एक इंडिविजुअल, एक स्टूडेंट, एक लर्नर नए कोर्स को सिलेक्ट करता है, नए प्रोग्राम में जाता है, नए कोर्स में एडमिशन लेता है, तो वहाँ उसको ज़रूरत पेश आती है कि उसे प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, उसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाए, ताकि वो उस सूरत हाल को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर पाए और उसके मुताबिक अपने कोर्स और प्रोग्राम के हवाले से आगे बढ़ सके। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग फॉलो अप सर्विस टू स्टूडेंट्स? द टीचर इन चार्ज ऑफ गाइडेंस एक्टिविटीज़ आर द करियर मास्टर or the guidance counselor, studies the progress of the pupils in the institution or the occupation for a period of time. तो जो टीचर इन चार्ज है गाइडेंस एक्टिविटीज़ का, या करियर मास्टर है, या गाइडेंस काउंसलर है, कुछ भी आप कह सकते हैं उसको, तो वो जो अपना रोल प्ले कर रहा है, वो एक्चुअली स्टडी करता है स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को उस इंस्टीट्यूशन के अंदर, whether the progress of students is perfect, is positive, is accordingly or not. वो प्रोग्रेस ठीक जा रही है, बच्चे ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो रहे हैं, या उनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है किसी भी हवाले से, तो इसको स्टडी किया जाता है और उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। सो दिस स्टडी प्रोवाइड्स फीडबैक टू द गाइडेंस पर्सनल अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ हिस गाइडेंस। तो जितनी भी वो गाइडेंस प्रोवाइड करता रहा है पास्ट में और जो रिसेंटली कर रहा है किसी भी इंडिविजुअल को, उसके हवाले से जब वो तमाम स्टडी करेगा और तमाम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो उसे मिल रही है या वो जो कलेक्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के हवाले से, ये तमाम इन्फॉर्मेशन उसे प्रॉपर फीडबैक के हवाले से मदद दे सकती है। So follow-up programs determine how many are rotting in jobs to which they are fitted. एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि जो फॉलोअप प्रोग्राम है और फॉलोअप सर्विस है, इसका एक्चुअली मकसद क्या है? मकसद ये है कि जितने लोग भी जॉब कर रहे हैं, जब वो स्कूल को लीव करते हैं, जब वो कॉलेज को लीव करते हैं, जब वो यूनिवर्सिटी को लीव करते हैं और अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हैं और किसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं और फिर अपना करियर स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे वो जो जॉब कर रहे होते हैं, तो ये देखा जाता है फॉलोअप सर्विस में या फॉलोअप प्रोग्राम में, वो जो जॉब कर रहे हैं क्या उसमें मुकम्मल, कम्प्लीटली, परफेक्टली फिट हैं, या वो किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसके हवाले से आप जायज़ा लेते हैं, इसके हवाले से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो एक्चुअली यू आर डीलिंग विद फॉलोअप सर्विसेज। नंबर नेक्स्ट इज हाउ मेनी पीपल नीड रीएडजस्टमेंट इन देयर ऑक्यूपेशंस। तो इसमें यह देखा जाता है कि उनको उस प्रोफेशन में, उस ऑक्यूपेशन में किस तरीके से रीएडजस्ट किया जा सकता है।
इफ़ दे आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, उनके प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है और उनको रीएडजस्ट किया जा सकता है उस एनवायरनमेंट में। विच न्यू प्रिपरेशन दे हैव टू मेक फॉर प्रॉपर एडजस्टमेंट, और जब प्रॉपर एडजस्टमेंट के लिए आप काम करेंगे, आपकी कोशिश होगी कि उस इंडिविजुअल को प्रॉपर तरीके से एडजस्ट किया जा सके, तो उसके लिए प्रिपरेशन क्या ज़रूरत होगी, उसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी, क्या चीज़ चाहिए होगी जो ज़रूरी होगी ताकि आप प्रॉपर एडजस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें उस प्रॉपर सिचुएशन में। सो ऑल दैट इज़ रिलेटेड टू फॉलो अप प्रोग्राम्स एंड फॉलो अप सर्विसेज। सो फॉलो अप सर्विसेज एम एट इवेल्युएटिंग द प्लेसमेंट एंड अदर गाइडेंस सर्विसेज। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आप प्लेसमेंट सर्विसेज और गाइडेंस सर्विसेज जितनी भी हैं उनका जायज़ा ले रहे होते हैं, उनको इवेल्युएट कर रहे होते हैं। तो फॉलो अप सर्विसेज एक्चुअली इवेल्युएशन है, एक तरह का जायज़ा लेना है। आप इवन के ओरिएंटेशन सर्विस का जायज़ा ले सकते हैं, आप टेस्टिंग सर्विस का जायज़ा ले सकते हैं, आप प्लेसमेंट सर्विस का जायज़ा ले सकते हैं, आप रिसर्च एंड इवेल्युएशन सर्विस का जायज़ा ले सकते हैं। तो फॉलो अप सर्विस एक्चुअली इवेल्युएटिंग सर्विस है, जिसमें आप तमाम सर्विसेज को इवेल्युएट कर सकते हैं प्रॉपरली कि वो इफ़ेक्टिव हैं, वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही, और कहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसको दूर किया जाए, उसको एडजस्ट किया जाए और इंडिविजुअल की हेल्प की जाए, ताकि वो जो डिससेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं, वो जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं, उनकी हेल्प करके उनको उस सिचुएशन से निकाला जाए। So it discovers the changes in occupational interest of the pupils and assist them in making adjustment as would be necessary. तो इसमें जो इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स की, जो लर्नर्स की इंटरेस्ट है, ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट है, उसको सामने रखा जाता है, उसको डिस्कवर किया जाता है और फिर उस इंटरेस्ट लेवल के मुताबिक उनको असिस्ट किया जाता है, उनकी हेल्प की जाती है ताकि वो प्रॉपर तरीके से उस एनवायरनमेंट में और उस ऑक्यूपेशन में एडजस्ट हो सकें। सो फॉलो अप सर्विसेज आर आल्सो हेल्पफुल इन रीऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्रूविंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो ये तमाम फॉलो अप सर्विसेज जो हैं, ये जो इवेलुएशन सर्विस है, ये जो फॉलो अप सर्विस है, ये फॉलो अप प्रोग्राम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये असल में एजुकेशनल प्रोग्राम की इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप एजुकेशनल प्रोग्राम को रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, यू वांट टू इम्प्रूव एजुकेशनल प्रोग्राम, देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट फॉलो अप सर्विस। आप फॉलो अप सर्विस के ज़रिए तमाम इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स में, इंस्टीट्यूशंस में क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स वहाँ पे सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं या नहीं, वो अपनी स्टडीज़ के हवाले से मुतमईन हैं या नहीं हैं, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ दे हैव। इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हासिल करके आप उनकी हेल्प कर सकते हैं और उनको एडजस्टमेंट के लिए रास्ता बता सकते हैं। सो इट मे बी कॉल्ड अ मॉनिटरिंग सर्विस। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये एक इवेल्युएशन सर्विस है जिसमें आप जायज़ा लेते हैं, तो इसका दूसरा नाम मॉनिटरिंग सर्विस भी हो सकता है कि इसमें एक्चुअली आप मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, तमाम सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है, तो इट मे बी कॉल्ड अ मॉनिटरिंग सर्विस। इट लुक्स इनटू द थिंग्स दैट पीपल्स आर राइटली प्लेस्ड आर नॉट। इसमें आप ये देखते हैं कि आपके स्टूडेंट्स सही जगह पर अपना काम कर रहे हैं, क्या जो कोर्सेज वो सिलेक्ट कर चुके हैं वो प्रॉपर तरीके से ठीक हैं, उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक हैं, उनकी दिलचस्पी उनमें है या नहीं है, उनको इस हवाले से कोई डिफ़िकल्टी तो फील नहीं हो रही। तो आप इस हवाले से कुछ क्वेश्चन रेज करते हैं और उनका आंसर तलाश करने की कोशिश करते हैं। डू दे नीड सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस टू डू वेल। उनको किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, और अगर है तो किस तरह की गाइडेंस चाहिए। डू दे नीड गाइडेंस टू चेंज देयर लाइन ऑफ एक्शन एज ए होल। क्या उनको ऐसी गाइडेंस चाहिए जिस पे वो अपनी प्रॉपर लाइन ऑफ एक्शन को चेंज कर सकते हैं। हाउ कैन दे स्टिल डू बेटर इफ़ दे आर डूइंग वेल। और अगर वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, वो ठीक जा रहे हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, तो मज़ीद बेहतरी कैसे लाई जा सकती है।
वो उससे बेहतर परफॉर्मेंस कैसे ला सकते हैं। तो इसके हवाले से आप इन क्वेश्चन का आंसर तलाश करते हैं और इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फॉलो अप सर्विस? ensures personal contact and correspondence with the student even after he leaves the school। बच्चा जब स्कूल मुकम्मल करके स्टडीज़ कंप्लीट करके चला जाता है तो इवन तब भी फॉलो अप सर्विस की ज़रूरत होती है, और इस हवाले से आप पर्सनल कांटेक्ट में रहते हैं, आप प्रॉपर कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं स्टूडेंट के साथ और उसके बारे में पूछते रहते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं कि वो वहाँ से किसी दूसरे अदारे में गया है, किसी दूसरे प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, या उसने कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ज्वाइन किए, क्या वो वहाँ पे सेटिस्फाई है या नहीं है, उसकी इंटरेस्ट उसमें है या नहीं है, अगर नहीं है तो किस तरह के प्रॉब्लम उसे पेश आ रहे हैं। तो इस हवाले से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो इट हेल्प्स टू कीप कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉयर एंड हेड्स ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस। जहाँ आप पर्सनल कांटेक्ट में रहते हैं इंडिविजुअल से, वहीं पे आप जो एम्प्लॉयर हैं, जो एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, उनके हवाले से और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के हेड के साथ आप लाइजन रखते हैं, आप कांटेक्ट रखते हैं और शेयरिंग करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन की। आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं और अपने स्टूडेंट के हवाले से जो उसकी इंटरेस्ट थी, जो उसकी मोटिवेशन थी, जो उसकी स्किल्स थी, उनके साथ शेयर करते रहते हैं। It helps to collect information about the student during the post placement period। और इवन के जब वो प्लेसमेंट हो जाती है उसकी, तो उसके बाद भी उस स्टूडेंट के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, ताकि बाद में उसको प्रॉपर तौर पे आप गाइड कर पाएँ और उनको प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए। सो द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड प्रोवाइड्स फीडबैक अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम। और जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, जो आप कलेक्ट कर रहे होते हैं, ये एक्चुअली आपको फीडबैक प्रोवाइड करती है, और इस फीडबैक से आप कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम की इफ़ेक्टिवनेस जान सकते हैं कि आपका गाइडेंस प्रोग्राम ठीक जा रहा है, इफ़ेक्टिव है, या वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, और अगर हैं तो वो किस तरह के हैं, किस नेचर के हैं, उसको कैसे सेटल किया जा सकता है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। इस हवाले से ये इन्फॉर्मेशन, ये फीडबैक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। फॉलो-अप सर्विस आल्सो पेव्स द वे फॉर मॉडिफाइंग एंड इम्प्रूविंग द गाइडेंस प्रोग्राम ऑफ द स्कूल। ये जो फॉलो-अप सर्विस है, ये एक्चुअली आपके स्कूल के गाइडेंस प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के हवाले से या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाने के लिए एक रास्ता आपको देती है। और आप जो इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं इंडिविजुअल्स के बारे में, उस इन्फॉर्मेशन की बेस पर, उस फीडबैक की बेस पर आप अपने गाइडेंस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज ला सकते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इट मे हेल्प इन रिप्लेसमेंट और चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स ऑक्यूपेशन इफ़ द सिचुएशन अराइजेस। और अगर कहीं पे कोई ऐसी सूरत हाल आती है कि आपने रिप्लेस करना है किसी भी सब्जेक्ट को, ऑक्यूपेशन को, और इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रहा, आपका क्लाइंट सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रहा किसी भी ऑक्यूपेशन के हवाले से, किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, तो आप उसको किस तरीके से बेहतर रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। तो इसके हवाले से भी फॉलोअप सर्विस आपकी हेल्प करती है। ये तमाम जितने भी स्टूडेंट हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं रिसेंटली, या वो स्टूडेंट्स जो किसी भी हवाले से अपनी स्टडीज़ को छोड़कर चले गए हैं, और इसके साथ साथ वो तमाम स्टूडेंट्स जो आपके अदारे से स्टडीज़ कंप्लीट करके गए हैं, इन तमाम स्टूडेंट्स के हवाले से आप इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, और इन तमाम स्टूडेंट्स को जहाँ जहाँ जिस हवाले से भी मदद की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है, आप एज ए गाइडेंस पर्सनल उनको उनके प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ के बारे में, उनकी कंसर्न्स, उनके क्वेश्चंस के बारे में, उनकी क्यूरीज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनको सोल्यूशन के रास्ते बताते हैं। सो पीपल्स इवन आफ्टर लीविंग द स्कूल कैन कम टू द स्कूल फॉर हेल्प एंड गाइडेंस। बच्चे जब चले जाते हैं स्कूल स्टडीज़ कंप्लीट करके,
तो वो तब भी वापस आते हैं स्कूल में, वो गाइडेंस हासिल करना चाहते हैं, उनको किसी तरह की हेल्प चाहिए, तो वो दोबारा अपने स्कूल में रब्ता करते हैं, अपने अदारे में आते हैं और वहाँ पे अपने टीचर के साथ कांटेक्ट करते हैं और अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं उनके साथ। और इस तरह से आप एज ए टीचर उनको उनके प्रॉब्लम के बारे में प्रॉपर गाइड कर सकते हैं और प्रॉपर सोल्यूशन बता सकते हैं। So follow-up program can be conducting in a number of ways. The guidance personnel maintains a list of all the students who have received placement service. आप एक लिस्ट बनाते हैं, जो गाइडेंस पर्सनल है वो एक कंप्लीट लिस्ट प्रिपेयर करता है, उसको मेंटेन करता है उन स्टूडेंट्स की who have received placement service, जिन्होंने प्लेसमेंट सर्विस को हासिल किया है। उनकी कंप्लीट लिस्ट आपके पास होती है और आप उस लिस्ट के मुताबिक उनको फॉलो करते हैं। द गाइडेंस पर्सनल कीप इन टच विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ गिवन एम्प्लॉयमेंट टू द स्टूडेंट। और एज ए गाइडेंस पर्सनल आप इन टच रहते हैं तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जहाँ पे आपके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, या उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कांटेक्ट रखते हैं जहाँ पे आपके स्टूडेंट्स तालीम मुकम्मल करने के बाद जॉब कर रहे हैं या किसी प्रोफेशन को अख्तियार किया हुआ है। He collects information from the student about his progress and difficulties relating to his education, vocational training and employment. और इसका मकसद ये होता है कि आप एज ए गाइडेंस पर्सनल फॉलोअप सर्विस प्रोवाइड करते हुए अपने स्टूडेंट के बारे में, उसकी प्रोग्रेस के बारे में, उसकी डिफ़िकल्टीज़, उसके मसाइल के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उसके एजुकेशन की है, उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग की है, उसकी एम्प्लॉयमेंट की है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास जब आ जाती है तो उसकी रोशनी में आप उसको प्रॉपर गाइड करते हैं। एंड सच इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड बाय पर्सनल कांटेक्ट विद द स्टूडेंट। तो ये इन्फॉर्मेशन आप कैसे हासिल कर सकते हैं? आप स्टूडेंट के साथ पर्सनल कांटेक्ट रखते हैं और ये कांटेक्ट इंसिडेंटल भी हो सकता है, ये डेलिबरेट भी हो सकता है। थ्रू मेल्ड क्वेश्चनर, पोस्टल कॉरेस्पॉन्डेंस और इन अ मीटिंग ऑफ ओल्ड स्टूडेंट्स। तो ये आप क्वेश्चनर के ज़रिए भी पूछ सकते हैं, आप ओल्ड स्टूडेंट की मीटिंग भी कॉल कर सकते हैं। एंड देयर आर मैनी एसोसिएशंस, उन एसोसिएशंस का फोरम भी यूज़ किया जा सकता है। The guidance personnel can also contact the employer or the head of the education training institution for collecting information about how the student is doing, what progress he has made and what difficulties he is facing. Even कि आप head of institutions, training institutions, उनसे भी रब्ता रख सकते हैं, employer से भी contact कर सकते हैं ताकि आप proper information हासिल कर सकें अपने students के बारे में, ताकि आप ये जान सकें कि उनकी प्रोग्रेस का लेवल क्या है, या अगर वो डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं तो किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ हैं। द फीडबैक रिसीव्ड अबाउट द स्टूडेंट क्रिएट्स ग्राउंड्स फॉर मॉडिफाइंग, इम्प्रूविंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग द गाइडेंस प्रोग्राम ऑफ द स्कूल। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी, ये जितनी भी फीडबैक आप हासिल करेंगे अपने स्टूडेंट्स के बारे में, तो ये एक्चुअली आपको हेल्प आउट करेगी कि आप अपने स्कूल के प्रोग्राम को, जो गाइडेंस प्रोग्राम है, उसको मॉडिफाई कर सकें, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें और उसको रीस्ट्रक्चर कर पाएँ ताकि बेहतर से बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके आपके स्टूडेंट्स को।